बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। How are you all? I am a teacher of Metropolitan Foundation School. Student, this is your revision work. Chapter number 9, Measurement, and chapter number 4, Our Body is a Wonderful Machine. Month of August. This is your science book. Chapter number 9, Measurement. Measurement is an important and essential part of our daily life. We need to measure time, length and volume, and we use different units to measure them. Okay students, this is your chapter Measurement. Measurement unit, first of all, time. Time is the interval between two occurrences, analog and digital. This is analog and digital clocks are two type of clock which are used to measure time. An analog clock show time by the position of arm and a digital clock show time in number. Hours, minutes and second are the standard unit of time. स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि टू टाइप के क्लॉक्स हैं, एक एनालॉग, दूसरा है डिजिटल। ठीक है, एनालॉग जो क्लॉक है उसमें आप नॉर्मली देखते हैं कि उसमें आवर्स की, मिनट्स की एंड सेकंड के आर्म्स होते हैं, हैंड्स होते हैं, जो कि आपको टाइम बताते हैं। इसके अलावा जो डिजिटल क्लॉक होता है वो उसमें आप नंबर्स आपको शो करवाते हैं। ठीक है, वॉल्यूम, ये आपको मुख्तलिफ किस्म के वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क, वाटर, बलून, ऑयल, ये सब मुख्तलिफ किस्म के वॉल्यूम हैं। वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट. Liquid like water, milk and oil are measured by their volume. There are measuring jar or bottles for this purpose. Milk is measured in liter. Liter is a common unit of measurement of volume. Okay student? This is clinical thermometer. The doctor use a clinical thermometer to measure body temperature. We measure temperature in Celsius, Fahrenheit and Kelvin scale. Okay students, हम नॉर्मली जो बॉडी टेम्परेचर है जिससे मालूम करते हैं उसे थर्मामीटर कहते हैं। ये हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बताता है। ठीक है, यूजुअली अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर. अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड द टेम्परेचर फ्रॉम 35 Celsius to 42 Celsius और 95 Fahrenheit to 108 Fahrenheit. This is rain gauge. Okay student, हम जो रेन होती है उसको हम जिससे हम इसको मेजर करते हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम रेन गेज उसको कहते हैं रेन गेज. ठीक है, on a rainy day keep a tumbler or a bowl in open area. After the rain measure the collect water by using a small beaker or measuring cylinder. Rainwater for a certain period of time is collected in a jar which is kept out in the open. This jar measures the amount of rainfall and it's called rain gauge. जिससे हम बारिश को मेजर करते हैं उसको कहते हैं रेन गेज. ओके स्टूडेंट, हमारा जो सेकंड चैप्टर है मंथ ऑफ अगस्त का, chapter name Our Body is a Wonderful Machine. Our body is more wonderful than any other machine in many ways. It can do many things. It can see, taste, feel, move, play, grow, breathe and reproduce. ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, वो एक वंडरफुल मशीन है जिसे हम अल्लाह ताला ने बनाया है और ये हमारी मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस करती है और ये मुकम्मल तौर पे ऑर्गेनाइज होती है
ठीक है, हम अपनी बॉडी के ज़रिए देख सकते हैं, सुन सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और जो हमारा जो बॉडी है, वो जो मशीन हमारी परफॉर्म कर रही होती है, वो उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम जो होते हैं वो चल रहे होते हैं, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये जो हमारी बॉडी है, ये इस तरह ये एक वंडरफुल मशीन की तरह परफॉर्म कर रही होती है। Skeletal system. Our body is made of bones. Most bones are hard, while some bones are soft. All the bones are joined together to form an internal skeleton. The skeleton gives shape, size, and support to our body and helps in body movement. ओके स्टूडेंट्स, हमारी जो स्केलेटन है, हमारी पूरी जो एक हार्ड बोन्स का जो स्ट्रक्चर है, वो हमारी इंटरनल जो पार्ट्स हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, लाइक स्कल्स में ब्रेन है, और जो हमारे रिब केज के अंदर हार्ट, लंग्स, स्टमक, किडनी, इन सब को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और इसके अलावा हमारी जो बॉडी है उसको शेप देता है और उसको साइज देता है। इसके अलावा हमारी बॉडी को सपोर्ट भी करता है, और इसके अलावा एक और फंक्शन है जिसमें वो हमारी जो बॉडी है उसको मूव करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, इट आल्सो प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, द स्कल प्रोटेक्ट आवर ब्रेन एंड द रिब प्रोटेक्ट आवर हार्ट एंड लंग्स। नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है कि हम जो भी फूड हम खाते हैं उसको वो हमारे बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होता है, और उसके बाद वो पूरा एक डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो हो रहा होता है। द फूड वी ईट इज डाइजेस्ट इनसाइड आवर बॉडी। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू द simplest form that our body can absorb and use is called digestion. Okay? अब से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि कैसे जो फूड होती है वो डाइजेस्ट होती है, ये डायग्राम आपको इसको शो करने में हेल्प करता है। द फूड पाइप, द स्टमक, द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन आर द मेन ऑर्गन दैट फॉर्म आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। Okay students, how do we take in and digest our food? You know that first of all, mouth. We take in food through our mouth. Okay, हम क्या करते हैं, अपने माउथ के जरिए फूड को लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, इट इज च्यूड एंड मिक्स विद सलाइवा। हमारे जो माउथ में एक लिक्विड मौजूद होता है जिसको सलाइवा कहते हैं। ठीक है, सेकेंडली फूड पाइप, फूड पासिस डाउन टू स्टमक थ्रू फूड पाइप। ठीक है, स्टमक में जो फूड जो है फूड पाइप के थ्रू पहुंच जाता है। थर्ड वन, स्टमक, फूड इज क्रंच एंड मिक्स विद डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक। एंड नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। We breathe air in and out through our nose. Respiratory system supplies oxygen to various parts of the body. Its main organs are nose, windpipe and lungs. The nose, the windpipe and the lungs help us to breathe. When we breathe in, air enters through our nose and goes into the windpipe and finally enter the lungs. The air we breathe in contain oxygen. We use oxygen of air to produce energy from food. Okay students, तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो हम नॉर्मली जो एक ह्यूमन बीइंग है वो नोज के थ्रू एयर अपने अंदर लेके जाते हैं, और वो ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम वो नोज के ही थ्रू बाहर निकाल देती हैं। और ये ऑक्सीजन जो होता है ये हमारे इसकी जो मेन ऑर्गन्स होते हैं वो नोज, विंड पाइप एंड लंग्स होते हैं, जो कि ब्रीथिंग सिस्टम के लिए हेल्पफुल होते हैं।
अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जिसको अगर हम उसको फॉलो करें तो हम बेहतर तौर पे अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत अच्छे से उसको परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रीथ इन फ्रेश एयर, ब्रीथ थ्रू आवर नोज नॉट आवर माउथ। हम नोज से सांस लें, हम माउथ से सांस नहीं लें। ओके, एंड कीप द विंडो ऑफ आवर रूम ओपन एंड नॉट कवर आवर फेस वाइल स्लीपिंग। जब हम सो रहे हों तो हम उस वक्त हम अपने मुंह को कवर नहीं करें और उसको खुला रखें। इसके अलावा फ्रेश एयर में हम सांस लें। इसके अलावा हम नोज से सांस लें और माउथ से नहीं लें। ओके स्टूडेंट। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, जो कि किडनी की वजह से होता है, ये बहुत अहम होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम remove waste material from the blood. Kidney are the main organ of excretion in our body. We have 2 kidneys. They clean our blood and throw out wastes from the body in the form of urine. क्या होता है कि हम यूरिन के फॉर्म में जो वेस्ट मटेरियल है वो हम बॉडी से थ्रो आउट कर देते हैं। Our body cells regularly produce waste material which are released into blood. This waste is very harmful for our body and must be immediately removed from our body. ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि when we breathe out air, carbon dioxide is thrown out of the body by lungs. Skin also throw out extra water and salt in the form of sweat. तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम को डेवलप करती हैं। और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, ये वेस्ट मटेरियल जो होता है वो यूरिन और स्वेट के जरिए बॉडी से पास आउट कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है बेटा? द ब्रेन ऑर्डर ईच पार्ट व्हाट टू डू बाय सेंडिंग मैसेज थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड नर्व्स। हम क्या करना चाहते हैं, हमसे क्या हो रहा होता है, या हम क्या ख्वाहिश करते हैं, ये तमाम नर्वस सिस्टम हमें बताता है और हम उसको वैसे ही फॉलो कर रहे होते हैं। मैसेजेस फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी आल्सो कम टू द ब्रेन थ्रू दीज नर्व्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, when we are tired, you know, हम नॉर्मली बहुत सारे काम करने के बाद टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं। our muscles send message to the brain. the brain order the body to take rest. तो हम क्या होता है, हमारी बॉडी ब्रेन के पास ये मैसेजेस जाता है कि हम थक गए हैं, तो ब्रेन हमें ऑर्डर देता है कि हमारी बॉडी रेस्ट ले ले। सिमिलरली क्या होता है, when we see any danger, our brain order our body to run away. Okay, brain, spinal cord and nerves from our nervous system. We can feel our environment and react to change in the environment with the help of nervous system. जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करने में बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट टॉपिक में आप ये देख रहे हैं कि कुछ ऑर्गन्स बने हुए हैं। आपको ये बताना है कि ये ऑर्गन्स क्या परफॉर्म कर रहे होते हैं। नंबर 1 ऑर्गन जो है वो हार्ट है, दिल है। अब हार्ट का क्या काम है, ये इसका कौन सा सिस्टम है? इसका सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बॉडी से ब्लड को सर्कुलेट करता है। ठीक है। नंबर 2 है लंग्स। लंग्स का क्या काम है? ये इसका सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमारी जो एयर है जिससे हम ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हैं तो वो लंग्स के थ्रू होता है। नंबर 3 स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके। नंबर 4 है किडनी। इसका काम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये जो है कि हमारी बॉडी से जितनी भी वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट आउट करता है यूरिन के फॉर्म में। नंबर 5 है ब्रेन। ये है नर्वस, इसका ये बिलोंग करता है नर्वस सिस्टम से। ठीक है। और नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये हमारे बॉडी के तमाम डिसीजन को ये फॉलो कर रहा होता है और हमारी बॉडी को ये बता रहा होता है कि हमें कब और कहाँ और कोई काम कैसे करना है। नंबर 6 है स्कल।
स्केलेटल सिस्टम, स्कल जो है स्केलेटल सिस्टम को डेवलप करता है। नंबर 7 है मसल्स, और ये है मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, इस मसल से हमारे जो मसल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं और मसल जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अभी इस बॉडी में मैंने आपको इस चैप्टर में मंथ ऑफ अगस्त के जो 2 चैप्टर्स हैं, नंबर 1 चैप्टर जो था वो है मेजरमेंट, और नंबर 2 मैंने आपको करवाया अभी अवर बॉडी इज अ वंडरफुल मशीन। ये मैं आपको पहले भी मैं करवा चुकी हूँ, मंथ ऑफ अगस्त के ही में आपको दोनों चैप्टर आपको मैंने करवा दिए हैं, और अभी मैंने इसका आपको रिव्यू दिया है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर, फिल द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल एंड डायग्राम, ये सब मैंने आपको करवा दिया है, आपको सॉल्व करवा दिया है, और मुझे यकीन है कि आप इसको कॉपी में बहुत अच्छे से कर चुके होंगे, और अभी मैंने आपको सिर्फ इसका रिव्यू दिया है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा और इसको समझिएगा, और कुछ जो भी आपको समझ नहीं आए तो आप मुझसे ग्रुप में और आप बहुत मुझसे आप पूछ सकते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आया होगा। तो बहुत शुक्रिया, अपना बेटा बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है, और पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा, और जब इंशाअल्लाह ताला स्कूल खुलेंगे तो आपकी पहले से बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी होगी। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।